Hello. 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 Vijay sir. Hello. 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 Yes, sir. Your voice, sir. Yes, sir, you're audible. Yeah. You're audible, sir. You're audible. Okay. Sonal ma'am, you can proceed. He is audible now. Okay. Okay. Great. Great. Thanks to God. Hello. Sonal ma'am, please unmute yourself. A very good evening to one and all here. It's a great honor for me to be a moderator of today's stage talk. I'm grateful to our respected CMD sir, E.T. ma'am, who gave me this opportunity to introduce a man with great thoughts, high thinking, and simple living, Mr. Vijay Soni. There is so much to tell about him as he possesses his greatness in almost every field. He is a marathon runner, biker, swimmer, motivational speaker, fitness expert, painter, writer, and yes, we can call him a polymath. But with the divine blessings of his Lord Sri Satya Sai Baba, he adds many other characteristics in his personality. Professionally, he is the Assistant Commissioner, State Tax of Madhya Pradesh. Apart being an active member of Sri Satya Sai Baba Seva organization, he has also participated in various national and international marathon events. In 2019, he finished world's toughest and coldest comrade marathon in South Africa, where he has ran 82.2 kilometers in 11 hours 43 minutes. In 2018, he went to Shirdi from Indore, pedaled around 800 kilometers in 4 days. He is a great follower of APJ Abdul Kalam and Mother Teresa, and he strongly believes that one should always aim high, as aiming low is a crime. So without wasting a single moment, I would request Vijay sir to enlighten us on secret of success by setting goals and time management. One more point
I want to add, as I feel lucky to have a colleague like Mr. Sopanam Baselkar, who gave me the chance to be a moderator of such an esteemed personality. Thank you so much, sir. Vijay sir, the mic is all yours. थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ मेरा PowerPoint प्रेजेंटेशन करना शेयर करना है मेरे को। मेरा PowerPoint प्रेजेंटेशन शेयर करना है, तो इसके लिए डिसेबल्ड है मेरे लिए। Lavanya ma'am, please do the needful. Yes, Hello. ma'am. हेलो, मेरा PPT यहाँ इस पे डिसेबल हो बतला रहा है, उस पे कर नहीं पा रहा हूँ। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो बोल रहा होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, एक मिनट सर। सर अब ट्राई कीजिए प्लीज। ओके, यस, फाइल्स, जस्ट अ मिनट। कहाँ से आएगा इसके अंदर? मेरे डॉक्यूमेंट्स में, किसमें इसमें इसमें बेसिक्स कहाँ पे? अच्छा, ओके, इधर। जस्ट ए मिनट मैडम, एक मिनट डॉक्यूमेंट्स। ओके, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इसको इसको ये ओके। भगवान बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी टीचर्स को, गुरुओं को, क्योंकि वो सब भगवान से पहले आते हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबके लिए। और मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखूंगा, बीच में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन इसलिए रखना चाहता हूँ कि वन वे नहीं रहे, आप लोग बोर नहीं हो, थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहे, तो इसीलिए मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। और आज के मेरे विषय सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस थ्रू गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। हाँ, मेरा एक सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है। आप जो भी इसका आंसर देना चाहें, आप अपना हाथ खड़ा करके अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और उसका उत्तर दे दीजिएगा, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा। दो दोस्त हैं और दोनों ने तय करा कि इस संडे को हम माउंट क्लाइंबिंग के लिए चलेंगे। तो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या रहेगी? उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या रहेगी? आप कोई भी जी हाँ मैडम, आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए आप। सर ऑक्सीजन, हाँ, मे बी ऑक्सीजन मस्ट बी द। हाँ, Yeah. एक आपने आंसर दे दिया, ऑक्सीजन। दूसरा? सर their willingness to do that. ओके, दे आर विलिंगनेस टू डू, वेरी गुड। और Motivation of each other. They will motivate. मोटिवेट, कॉन्फिडेंस। सर आई थिंक सो हाँ, एक तो आंसर में टाइम सिलेक्शन की हम कब करना चाहते हैं। अच्छा, चलो, अब असल में मैं ज्यादा, क्योंकि मेरे दो प्रेजेंटेशन मिक्स कर दिए हैं। गोल सेटिंग का एक प्रेजेंटेशन अलग रहता है जिसमें 1 घंटे बोलता हूं मैं, टाइम मैनेजमेंट है, तो अब मेरे को दोनों को मिक्स कर दिया, इसलिए ज्यादा इंटरेक्शन ना करके आपको बतलाऊं कि सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए माउंटेन। अगर माउंटेन ही नहीं होगा तो वो क्लाइंब किस पे करेंगे? तो अगर हमारी जिंदगी में गोल ही नहीं होगा तो हमारी जिंदगी तो डायरेक्शन रहे, मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं उसके लिए। तो हमारी जिंदगी में हमेशा सबसे पहली चीज है जरूरी कि गोल। आपको हमेशा एक गोल सेट करना है। द बेस्ट माउंटेन क्लाइंबिंग इक्विपमेंट इज ऑफ लिटिल यूज इफ यू डोंट हैव ए माउंटेन टू क्लाइंब। तो चलिए,
तो आपका सबसे पहले जरूरी है आपकी जिंदगी के अंदर, यू मस्ट हैव ए क्लियर गोल। और इसको इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्शन। हमारी जिंदगी में अगर डायरेक्शन नहीं है, तो आपने कोई बहुत बड़ा पानी का जहाज बना लिया और उसके अंदर रडार नहीं लगाया, तो पानी का जहाज जाएगा कहाँ? या इस दूसरे तरीके से हम बात करें कि अगर आपको ट्रेन में बिठाल दिया और ये नहीं मालूम है आपको उतरना कहाँ है, तो आप कहाँ पे उतरेंगे? मतलब आपको कोई गोल ही नहीं। परंतु अगर आपको मालूम है कि इंदौर से जाके जबलपुर में उतरना है या भोपाल में उतरना है, तो आप उतर जाएंगे। हम लोग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है आजकल के यूथ के साथ में, तो ज्यादातर लोगों के साथ में, कि उनके कोई गोल नहीं है जिंदगी के अंदर। उनको कहाँ पहुंचना है, कोई गोल नहीं है। इसीलिए बोला गया है, गोल्स गिव यू द मीनिंग, the goal you give you the sense of meaning and purpose, a clear sense of direction। एक किताब है, मैं आपको अभी बतलाता हूँ, इसके अंदर जब आप लोग को मिलेगी आप तो पढ़िएगा जरूर। ये वाली किताब है, आप लोग को दिख रही होगी किताबें। इस किताब का नाम है द मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकलिन की किताब है। इसके अंदर इसने एक लोगो थेरेपी करके इजाद करी, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की किताब है। वर्ल्ड के फर्स्ट 5 बुक्स के अंदर ये आती है। इसने यही बतलाया कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ पर्पस है, तो आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप मतलब आप ज्यादा जिएंगे, क्योंकि आपको पर्पस रहेगा कि आपको वहां उस तक पहुंचना है। परंतु हम लोग के साथ दिक्कत है कि हमारा ना कोई गोल है, ना कुछ पर्पस है जिंदगी के अंदर, तो बस चल रहे हैं। सुबेरे अगर आप सुबेरे उठ रहे हैं बिस्तर पे से, और बिस्तर पे से उठने के बाद आपको लग रहा है कि आज मेरे को ये काम करना है, आज मेरे को बिस्तर पे से पाँव नीचे रखते ही साथ आपको लगना चाहिए कि आज मेरे को गोल जो मेरा है, आज वो मेरे को यहाँ तक जाना है और ये काम मेरे को जरूरी करना है। परंतु हम सब उठते हैं आराम से, और कब दिन निकल जाता है और कब सो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब आपका जो गोल है, आप लोगों से इसके अंदर वैसे वो निशान नहीं लगाया मैंने क्वेश्चन का, परंतु आप लोग का जो गोल है, वो अगर मैं पूछूं लोगों से कि क्या गोल है, तो लोग बात बतलाएंगे कि मेरा ये गोल है, वो गोल है। परंतु क्या आपका गोल लिखा हुआ है कि नहीं? आपने उसको कागज पेन पे लिखा है कि नहीं? अगर आपने गोल को कागज पेन पर नहीं लिखा है, कागज पेन से नहीं लिखा है उसको, तो वो केवल आपकी विश है, केवल एक इच्छा है। तो आपका जो भी गोल है, अगर सोपान को लगता है कि मेरे को बहुत अच्छा एक सिंगर बनना है और क्लासिकल सिंगर नंबर 1 ऑफ एमपी बनना है, तो उसको अपने कागज पेन पे लिख लेना चाहिए, डायरी में लिख लेना चाहिए। अभी मैं स्मार्ट गोल के बारे में जब बतलाऊंगा तो उसके अंदर और डिटेल में बतलाऊंगा कि मैं इस तारीख को एमपी का बेस्ट सिंगर रहूंगा। अगर ये लिख लेगा तो ये उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको सपोर्ट करेगा। और उस जो लिखा हुआ है, आप उसको घर में ऐसी जगह लगाइए जहां वो बार बार आपको दिखता रहे कि आपका गोल क्या है। परंतु हम ये सब चीजें करने का हमको लगता है कि शायद जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। अब गोल के 7 स्टेप्स हैं। नंबर पहला, राइट गोल, जो मैंने अभी आपको बतलाया है। योर स्टार्ट एंड कंप्लीशन डेट भी लिखिए उसके अंदर। उसको अगर आप गोल को प्राप्त कर लेंगे तो क्या फायदे होंगे आपको, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं उसके अंदर आपको, आप जब गोल के तरफ जाएंगे, अचीव करने के लिए जाएंगे। आपके एक्शन स्टेप्स होने चाहिए, और आप समय समय पर अपने गोल को रिव्यू करिए, और जब आप गोल को प्राप्त कर लेंगे तो अपने को रिवार्ड दीजिए, अपने आप की पीठ थपथपाइए कि, और आप कोई सी भी चीज, आप अपने लिए एक अच्छी किताब गिफ्ट में दे सकते हैं, या जो आप चाहें तो आप अपने लिए गिफ्ट दे सकते हैं। जब मैंने कॉमरेड मैराथन की तैयारी कर रहा था, तब मैंने यही सब चीजें करके रखी थी। मैंने अपना गोल लिख रखा था कि मेरे को 9 जून 2019 को मेरे को कॉमरेड साउथ अफ्रीका के अंदर पूरा करना है। जब मेरी पूरी हो गई तो मैंने अपने आप को एक बहुत अच्छी किताब गिफ्ट करी। तो ये आपको मोटिवेशन मिलता है उसको करने के लिए। अब ये खास पॉइंट ये है, आपका गोल जो है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शनेबल,
R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बतलाता हूँ। वैसे पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि स्पेसिफिक होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। अगर आपने सोचा मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, तो बहुत पैसे कमाने की जगह आप लिखिए कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा या 10 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। वो आपका होना चाहिए क्लियर, एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने सोचा कि मैं सूरज पे चला जाऊंगा। आप वो रियलिस्टिक एम मत रखिए। टाइम बाउंड, कितने समय में वो पूरा हो जाएगा। आपको मैं एक जो बहुत ही अच्छा, एक बहुत बड़ी हस्ती ने गोल लिखा है, वो मैं आपको बतलाता हूँ। और आप में से अगर कोई उसमें, आप अपना माइक अनम्यूट करके मेरे को बतलाइए कि किसका गैस करिए। आप लोग शायद गैस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि किस व्यक्ति का, हॉलीवुड की कौन सी पर्सनालिटी ने ये गोल सेट करा था और उसको अचीव करा। By 1980, I will be the best known Oriental movie star in the United States and will have secured $10 million. And in return, I will give the very best acting I could possibly give every single time I am in front of camera. And I will live in peace and harmony. आप में से कोई बतला से ये लिखा है, जो उसने गोल लिखा है, ये 9 जनवरी 1970 को लिखा है। एनी गैस, अगर कोई गैस कर सकते हैं तो बतलाएं कि कौन सा फिल्म एक्टर है हॉलीवुड का जिसने, अब इसके अंदर आप देखिए, अब जब तक आप उसका आंसर सोचिए, इसके अंदर उसने फिक्स टाइम कर दिया। कब तक? बाय 1980। सैम मेंडिस। अच्छा, और सोचिए, बाय 1980 मतलब उसने फिक्स कर दिया कि 1980 तक। और उसने कितना? $10 मिलियन। वो भी मेजरेबल है, टाइम बाउंड भी है, रियलिस्टिक भी है, सब वो स्मार्ट गोल के अंदर जो उसने बात बोली थी। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बतलाता हूँ, क्योंकि हमारे को 1 घंटे, अब आपके क्वेश्चन आंसर का भी समय इसमें मेरे को देना है। ये था ब्रूस ली। और ब्रूस ली कब मर गया? 1973 में। उसने जनवरी 70 में गोल लिखा था, 3 साल में वो सब अचीव करके चला गया। ये होता है गोल लिखने का फायदा। अब आप लोग में से मैं एक हिंट देता हूं, आप बतलाने की कोशिश करिए। एक मैनेजमेंट की वर्ल्ड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का फोटो है। एनी गैस ये कौन सी हो सकती है? चलिए मैं बतलाता हूं, क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फोटो है। हार्वर्ड फोटो दिखाने का मकसद केवल ये था, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए। बाकी यहाँ पे 1979 में फाइनल ईयर के, एमबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की एक रिसर्च की गई। और रिसर्च में ये तय किया गया, पूछा गया कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट में से कितने लोगों ने गोल्स लिखे हैं और कितने लोगों ने गोल सेट करे हैं और किनके गोल है नहीं। तो ये निष्कर्ष आया कि 3% लोग, बच्चे ऐसे थे फाइनल ईयर के जिन्होंने के अपने गोल्स लिखे हुए थे। 13% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल सेट करे थे परंतु लिखा नहीं था। और 84% लोग ऐसे थे जिन्होंने की गोल्स बनाए ही नहीं थे और लिखे भी नहीं थे और उनका कुछ गोल भी नहीं था। 10 साल बाद 1989 को उन सबसे वापस संपर्क किया गया, तो जो फिगर सामने आए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो फिगर क्या थे कि जिन्होंने गोल बनाया था लिखा नहीं था, वो 84% लोगों से डबल कमा रहे थे। और जो 3% जिन्होंने गोल लिखे हुए थे, वो पूरे लोग, बाकी 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। तो ये है आपका गोल, आपका सेट करने का पर्पस और उसके फायदे। तो आप लोगों ने अगर गोल अपना जिंदगी का सेट नहीं करा हो तो अपनी डायरी पेन में आज ही लिख लेना कि मैं इतने साल बाद, अगर आप लोगों में से कुछ को प्रिंसिपल बनने की इच्छा हो या कुछ को डायरेक्टर बनने की इच्छा हो, तो आज लिख लें अपनी डायरी में कि इतने साल बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टर रहूंगा और मैं इतनी सैलरी कमा रहा हूँगा। तो ये आप लिख के रखिए। अगर जो बच्चे लोग हैं वो भी अपनी लाइफ का अपना एक गोल सेट कर ले और लिख के रखें जरूर से, नहीं तो वो केवल विश रहेगी। रिमेंबर एक बहुत बड़ी चीज, द वेरी बेस्ट डायरेक्शन टू राइड ए हॉर्स
is in the direction it is going. Nurture your nature. आप जो भी गोल सेट करें ना, वो जो जिसके अंदर आप में टैलेंट हो. अगर सोपान से मैं बोलूं कि सोपान तुम क्रिकेट में गोल सेट करो, तो सोपान के साथ अत्याचार हो जाएगा. परंतु मैं सोपान को बोलूंगा तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो तुम अपनी गायकी के अंदर कुछ गोल सेट करो, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि नर्चर योर नेचर. मेरी बेटी का एग्जाम्पल है, वो बहुत अच्छी थी. उसका पीईटी के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था जीएसआईटीएस में, और मैं अगले दिन फीस जमा करने जाने वाला था. तो मेरी मदर ने बोला कि तुम्हारी बेटी रो रही थी रात को. तो मैंने कहा क्या बात है बेटा? तो उसने पापा मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है. उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो उसने मेरे को डिजाइनर बनना है. मैंने कहा ठीक है, डन. उसी वक्त 3 इडियट पिक्चर भी आई हुई थी. 3 इडियट पिक्चर के अंदर भी यही सब मैसेज हमको मिला है. तो मैंने कहा ठीक है, आज वो अमेरिका में डिजाइनर है. तो आपको ये सब, आपको ये मतलब जिस फील्ड के अंदर आप अच्छे हो उसके अंदर अपना गोल सेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अब आपने गोल सेट कर लिया. अब गोल सेट करने के अंदर आपने सेल्फ बिलीव है या नहीं, कि अरे यार मैं मालूम नहीं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा वहां पे, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पे. आप में एक नेगेटिव भावना, परंतु आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि नहीं, इसके अंदर तो मैं बिल्कुल ही पहुंचूंगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता वहां तक पहुंचने के लिए. एक घटना है, आप लोगों ने सुनी होगी इसके अंदर. चलिए फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बतला सके कि ये किस लड़की का फोटो है. बहुत फेमस लड़की है. सोचिए आप. चलिए मैं बतलाता हूँ, क्योंकि हमारे को फिर मेरा समय भी बढ़ते जा रहा है और मेरे को भी टाइम मैनेजमेंट पे ही बात करना है. ये अरुणिमा सिन्हा. अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी में बहुत शॉर्ट में बतला रहा हूँ कि ये बास्केटबॉल की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, और एक दिन उसको ट्रेन में से उठाकर कुछ लोगों ने उसके सोने की चेन छीनने के चक्कर में उसको ट्रेन से धक्का दे दिया, और वो रेल की पटरी पे गई. उसके पांव कट गए, और पांव कटने के बाद ये उसका फोटो है, और विकलांग हो गई. जब वो अस्पताल में थी, रात भर पटरी पे पड़ी रही. रात अगले दिन जब अस्पताल में थी, जब उसको होश आया और उसको पता चला कि मेरा पैर कट गया है, तब उसने क्या गोल सेट करा कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी. और माउंट एवरेस्ट ना केवल उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा, उसके बाद उसने गोल सेट करा कि मैं वर्ल्ड की 7 पीक, 7 कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक हैं उनको मैं क्लाइंब करूंगी. तो उसने उसके बाद उनको क्लाइंब करा. तो ये उसका सेल्फ बिलीव था, इसलिए वो अचीव कर पाई. अब आपने गोल सेट कर लिया, सेल्फ बिलीव कर लिया. अब आपकी अगली जिम्मेदारी है आपकी प्लानिंग. अब आप प्रॉपर प्लानिंग करिए. आपके बड़ा गोल सेट हो गया, उसके छोटे गोल बनाइए, सब गोल्स बनाइए, या एक मैक्रो गोल हो गया, उसके बाद माइक्रो गोल्स बनाइए, और उनको अचीव करने के लिए अपना पूरा एक एक्शन प्लान बना लीजिए. ध्यान रखिए, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस. एक रिसर्च हुई है, उसके द्वारा ये क्लियर हुआ है कि एवरी मिनट स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स as many as 10 minutes in execution. It takes only about 10 to 12 minutes for you plan out for the day, but the this small investment of time will save you 2 hours. आप रात को प्लानिंग कर लीजिए कि मेरे को कल क्या क्या करना है. आपके लेसन प्लान्स जो आपको स्कूल में लेना है, आपको आप तैयारी करके रख लीजिए, और मेरे को किस क्लास में किस तरीके से बतलाना है, या आपका दूसरा कोई गोल और है तो आप उस गोल के अंदर आपकी प्लानिंग अगले दिन की आप कर लीजिए. उस सवेरे जैसा मैंने आपको बोला कि बिस्तर से उठते साथ ही आप सबसे पहले तय करेंगे उस गोल के पास जाने के लिए मेरे को क्या करना है. आपने प्लानिंग भी कर ली. अब आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं. तो आपको अगली जिम्मेदारी हो गई आपको कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है. क्यों कंफर्ट जोन से आना है? ये आपकी कंफर्ट जोन है, और मैजिक कहाँ पे शुरू होता है? वेयर द मैजिक हैपन्स, यहाँ पे बाहर. जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आपका मैजिक शुरू होगा. तो इसके पहले मैं आपको उसके बाद जरूरी है आप कंफर्ट जोन से आ गए, आप फोकस रहिए.
अब कुछ लोग क्या करते हैं, इन्होंने तय कर लिया कि यार मेरे को इंजीनियर बनना है, तय कर लिया स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं कि इंजीनियर बनना, परंतु दूसरा दोस्त उसने बोला कि नहीं यार मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो उसने कहा अच्छा यार चलो मैं भी डॉक्टर बनता हूँ। तो आपने जो गोल सेट कर लिया है उसमें फोकस रहिए, उसको इधर उधर डाइवर्ट मत होइए। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। डेली प्रोग्रेस, अब आप फोकस भी हैं, अब आपको आपके गोल की तरफ डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन के बचपन की घटना। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी ने की एक आदत थी कि सुबह जब वो वॉक करने के लिए जाते थे तो वो छोटे छोटे से पत्थर लेके आते थे घर पे। सुंदर सा कोई सा शेप वाला पत्थर मिल गया तो घर पे आके उसको अलग अलग कलर से उसमें ड्राइंग करके उसको सजाते थे और अपने ड्राइंग रूम में रखते थे। एक दिन अमिताभ बच्चन सो रहे थे, सुबह करीब 7 बजे की बात है, और इनके पिताजी मॉर्निंग वॉक करके वापस आए। उन्होंने अमिताभ बच्चन को उठाया, बोला जरा बाहर चलो मेरे साथ और एक पत्थर उठा के अंदर लेके आना है। तो अमिताभ बच्चन गए उनके साथ, तो देखा एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पे रखा हुआ था। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी पहले तो मैं बतलाओ कि आप ये पत्थर वहाँ से मतलब आप उठा के कैसे ले आए यहाँ तक, क्योंकि कल तक तो ये घर के बाहर था नहीं, आप इतना बड़ा पत्थर उठा के कैसे ले आए। तो उनके पिताजी ने जो उत्तर दिया वो उनकी अमिताभ बच्चन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अमिताभ बच्चन के पिताजी ने क्या बोला हरिवंश राय बच्चन जी ने, कहते 3 महीने से मैं इस पत्थर को थोड़ा थोड़ा खसका रहा था, रोज 10-10 20-20 फीट धक्का दे दे के खसका रहा था। उससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती थी और वो धीरे धीरे घर के पास भी आता गया। तो अमिताभ बच्चन ने कहा इसी तरीके से हमको हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हमारे गोल की तरफ, रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस अगर हम करेंगे तो एक दिन डेफिनेटली हम हमारे गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। मेरा ये मानना है, मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि अगर आप सवेरे उठे हैं सोकर बिस्तर से, तो सवेरे अगर आप सोकर उठे हैं बिस्तर से, तब आपकी जो ग्रोथ हुई है, जो भी ग्रोथ आप मान लीजिए कि 0.001% हमारी ग्रोथ हुई है, तो अगर हम सोने गए हैं उस दिन, तो अगर हमारी उस दिन की ग्रोथ 0.1% हुई है कि नहीं, अगर 0.1% भी ग्रोथ नहीं हुई है तो आपने उस दिन का दिन बर्बाद कर दिया है। तो इसलिए हमारे को डेली प्रोग्रेस कुछ होना चाहिए। एक बहुत अच्छी कविता 2 लाइनें हैं पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी की, कि कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, सुबह जागा जिस जगह उससे आगे पढ़ के सो। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके बोलता हूँ, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, सुबह जागा जिस जगह उससे आगे पढ़ के नहीं बढ़ के सो। मतलब आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं उस दिन। इसीलिए मैंने ये डिजाइन भी मैंने ही करा है कोरल के ऊपर, तो ये मैंने एरो जो निशान बनाया इसीलिए कि आपकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई उस दिन। आगे पढ़ के नहीं बढ़ के सो गया। हाँ, आगे बढ़ के सोना है हमको, है ना। पढ़ के तो ठीक है उन्होंने लिखा है, परंतु हमको आगे बढ़ के सोना है। अब एक किताब मैं आपको बतलाता हूँ, ये मेरी मनपसंद किताब है, इसको मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। इस किताब को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साईं बाबा महावाक्यान लीडरशिप करके किताब है, कर्नल छिब्बर ने लिखी है। आपके यहाँ भोपाल में नहीं मिलेगी, आप सोपान को बोलिए जब वो पुट्टपर्ती जाएगा तो आश्रम से खरीद के लेके आएगा, आपकी लाइब्रेरी में रखवाइए। इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो अगर जिस भी फील्ड के अंदर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी किताब में से लिया है रीडर्स आर लीडर्स। इसको उल्टा करके देखिए, लीडर्स आर रीडर्स। आप इसको ऐसे करिए, रीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। तो इस किताब के अंदर लिखा है कि जिस भी फील्ड के अंदर अगर आप हैं, आप फिजिक्स के टीचर हैं, तो आपको फिजिक्स की साल भर में कम से कम 16 किताबें पढ़ना चाहिए, तो आप उस फील्ड के मास्टर बनते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप जिस भी फील्ड के अंदर आप टारगेट रखिए कि मेरे को इतने दिन के अंदर ये किताबें करना है। जैसे मैं आप लोगों को गोल सेट करा, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में भी गोल सेट करा। इस साल मैंने गोल सेट करके रखा है कि मैं साल भर में 50 किताबें पढ़ूंगा, वो मेरा सेट कर रखा है गोल। तो उस हिसाब से मैं लॉग बना के रखता हूँ, लॉग बना के उसके हिसाब से देखता रहता हूँ कि मैं उस गोल की तरफ कितना जा रहा हूँ। अब हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं 15 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे।
गोल को की तरफ आपकी प्लानिंग हो गई, सब कुछ कंफर्ट जोन से बाहर भी आ गया, परंतु अगर आपने टाइम मैनेज नहीं करा तो बहुत दिक्कत होगी। अब मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, whom do we manage? हम किसको मैनेज करते हैं? इसका आप आंसर दीजिए मेरे को कि किस चीज को हम मैनेज करते हैं। We manage ourselves. मैनेज आवरसेल्फ, वेरी गुड। और बताइए, मैं सबका थोड़ा हस्तक्षेप चाहता हूं कि इसके अंदर आए थोड़ा सा। So managing time. मैनेजिंग टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट में तो मैं बात कर ही रहा हूं। और बताइए, चलिए हम टाइम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं और हमको टाइम पे खत्म भी करना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं देता हूं। जो चीज हमारे पास कम रहती है, कम मात्रा में रहती है, हम उसको मैनेज करते हैं। हम किसको मैनेज करते हैं? जो चीज हमारे पास कम मात्रा में रहती है। बारिश, गर्मी के दिन हो गए, पानी नहीं मिलता है, तो हम घर में पानी कितना सोच समझ के खर्च करते हैं। अरे भाई संभाल के खर्च करो, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम इसीलिए हम मैनेज उस चीज को करते हैं जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। अब आप देखिए कि भगवान ने एक चीज, आपको हर व्यक्ति के पास रुपया पैसा अलग अलग होगा, हर व्यक्ति के पास रुपया पैसा अलग अलग होगा, परंतु भगवान ने एक चीज सबको बराबर मात्रा में, बिल्कुल तोल के, बिल्कुल बराबर मात्रा में तोल के दी है, वो है सबको 24 घंटे। कोई किसी को एक सेकंड भी कम नहीं दिया है, 24 घंटे दिए हैं। अब जिसने इस 24 घंटे का सही सदुपयोग कर लिया, उसने अपनी जिंदगी का उद्धार कर लिया। तो इसलिए डोंट से यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आवर्स दैट वर गिवन टू हेलन केलर, मदर टेरेसा, अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी। जब उन लोगों को भी तो 24 घंटे मिले थे, उन्होंने किस तरीके से उसका उपयोग करके आज वो इतनी महान हस्ती बन गए। हम भी अगर अपने इस टाइम का उपयोग करेंगे प्रॉपरली, तो हम भी क्या होगा, क्या होगा, अंदर से फीलिंग आ रही है। Sir, unmute yourself, please. हाँ मैंने कर लिया है ना, मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. हाँ, तो अगर हम सही समय का सदुपयोग करेंगे तो हम भी यहाँ पर गांधी जी और अब्दुल कलाम जी के बीच में शायद हमारी भी फोटो लग जाए, अमिताभ बच्चन के साथ हमारी भी फोटो लग जाए। अब टाइम मैनेजमेंट की जो सबसे बड़ा फंडा है वो रहता है आपकी प्रायोरिटीज तय करना। प्रायोरिटीज, आप इसके ऊपर विचार करिए, जिंदगी में हर जगह प्रायोरिटीज आपको तय करना आना चाहिए। आप सवेरे पेपर उठाया, आपके पास पेपर आया, तो पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरा पेपर चाटने की आपको जरूरत नहीं है। आप प्रायोरिटी तय करें कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपके सामने 2 किताबें रखी हैं, आपको तय करना पड़ेगी कि मेरे लिए फायदे के लिए कौन सी चीज है। तो आपको प्रायोरिटी हर जगह, मैं बहुत शॉर्ट में बतला रहा हूँ, आपको हर जगह आपकी प्रायोरिटीज आपको तय करना आना चाहिए कि मेरी लाइफ के अंदर क्या प्रायोरिटीज हैं, और उससे रिलेटेड में आपका जो गोल है उससे रिलेटेड आप प्रायोरिटीज तय करिए और उसकी तरफ आप बढ़िए। टाइम मैनेजमेंट की ये बहुत महत्वपूर्ण किया। इट हेल्प्स अस टू अवॉइड वेस्टिंग वैल्यूएबल टाइम ऑन लेस इंपॉर्टेंट चॉइसेस। आपका जो फालतू का समय, आप टीवी के अंदर बैठ जाते हैं, आप बैठ के देखते रहते हैं, चैनल बदलते रहते हैं, क्योंकि आपको प्रायोरिटी नहीं तय करना है ना, आपको बस है तो आप बैठे हैं और कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था, एक मेटाफिजिशियन है और फिलोसोफर है पीटर ऑस्पेंस्की। उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा, हाउ डू आई नो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर मी टू डू। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, इफ यू टेल मी योर एम, आपका एम क्या है, आई कैन टेल यू व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू। अगर आपका एम आप बतला दो तो मैं बतला दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस समय। तो देखिए, अगर ये 3 महान हस्तियां हैं हमारे देश की, विराट कोहली अपना मैक्सिमम समय क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए लगाता होगा, फिल्म की एक्टिंग के लिए नहीं लगाता होगा, या गायकी के लिए नहीं लगाता होगा। अनुष्का जो है वो एक्टिंग के लिए ज्यादा समय निकालती होगी, क्रिकेट खेलने के लिए और गायकी के लिए नहीं निकालती होगी।
और सोनू निगम जो है वो अपना क्रिकेट खेलने के चक्कर में नहीं रहता होगा, वो अपनी गायकी को इम्प्रूव करने के लिए रहता होगा। मैक्सिमम रियाज अपना समय वो रियाज उसके ऊपर करता होगा, क्योंकि उसके जिंदगी का गोल है अच्छा सिंगर बनना। अनुष्का का गोल है अच्छा एक्ट्रेस बनना, और विराट कोहली का एक अच्छा क्रिकेटर बनना। तो ये आप अपने गोल आपने जो सेट करें, आप प्रायोरिटीज ज्यादा से ज्यादा उसके लिए दीजिए। People who manage their time well have identified tasks, जो मैंने अभी आपको बतलाया है, ये वही वाली बात है। अब एक बहुत अच्छी आपको स्टोरी शेयर करता हूँ। जेपी मॉर्गन है, लेजेंडरी अमेरिकन फाइनेंसर हैं, ये 1800वीं सदी के समय के बैंकर थे। उनके पास एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मेरे पास एक एनवलप लेके आया, सील्ड एनवलप लेके आया, और उसने बोला कि मेरे पास सफलता का एक फार्मूला इसके अंदर है और आप $25,000, उस वक्त 25,000, 1856-57 की बात है, $25,000 अगर आप मेरे को देंगे तो मैं आपको ये गारंटेड सक्सेस का फार्मूला आपको देता हूं और आपको मिल जाएगा। आप लोग को चाहिए क्या? आपको मैं फ्री में देता हूं। मालूम है क्या था? चलिए देखते हैं क्या था। एवरी मॉर्निंग राइट डाउन ए लिस्ट the things that need to be done today and do them। आपने रोज, मैं तो बोलता हूँ रोज सवेरे मत लिखिए, रात को लिख लीजिए कि कल क्या क्या करना है और दिन भर में उसको कर लीजिए। अच्छा, आपको लगता होगा कि कितना सरल है ना ये, इसके $25,000, परंतु ऐसा नहीं है। इसके ऊपर में ये डू लिस्ट आप बनाइए, मस्ट डू, शुड डू, ये आप कर लीजिएगा। मैं खास क्योंकि टाइम मेरे को क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी समय देना है, इसके ऊपर चिंतन करिए। अगर आप जब काम कर लेंगे आपकी पूरी लिस्ट के हिसाब से, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो आप में सेल्फ कंट्रोल आएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा तो आप सेल्फ मास्टरी आएगी, और सेल्फ मास्टरी आ गई तो आपने टाइम मैनेजमेंट आपके लिए लाइफ मैनेजमेंट हो जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। एक राइटर ने 1000 क्वालिटीज लिखी किताब के अंदर और ये तय करा अलग अलग क्वालिटी की सफलता के लिए ये क्वालिटी जरूरी है, और दूसरे राइटर ने उससे पूछा कि इन 1000 क्वालिटी में कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसने बोला एक क्वालिटी ऐसी है अगर जो होगी तो बाकी 999 काम करेंगी, और अगर वो नहीं हुई तो बाकी 999 काम नहीं करेंगी, एंड दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रखें। अब मोस्ट कॉमन बैरियर्स क्या क्या हैं, मैं शॉर्ट में बतला रहा हूं। हमेशा नो कहने की आदत डालिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल वर्ड है नो। जब आपको लगता है कि नहीं है फालतू मेरा टाइम बर्बाद होगा, बिल्कुल नो कर दीजिए। देखिए, आपको मैं वीडियोस दिखाता हूँ कुछ जो मैंने खुद ने बनाए थे। हमारे सत्संग सेवा समिति के यूथ ने इसमें एक्टिंग करी थी और मैंने इसको खुद में डायरेक्शन दे के बनवाया था। आप देखिए, अगर आप ये वीडियो देखें। टेंशन में लिख रहे हो, क्या हुआ? आज बहुत सारा होमवर्क, लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगा। तू ठान लेगा ना तो सब हो जाएगा, फिक्र मत कर। वीडियो की आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. Yes. ओके सर थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए प्लीज। ओके। मैंने अभी कर दिया है। हाय सोनू, कैसा है? यार मंगल सिटी जा रहा था, आनंद भी आ रहा है, चल रहा है क्या? नहीं यार, नहीं चल सकती, बहुत सारा होगा। बस यार अभी गए अभी आता हूँ, तैयार हो जा, फटाफट में आता हूँ, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वो तो ठीक है यार, पर चल सिर्फ 15 मिनट के लिए। 7:30 बजे निकले वो वहां से, दोस्त आ गया।
ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा है। कितने बजे वापस आया? 10 बजे वापस आया। तो ये अगर वो नहीं कर देता उसको, तो अपना होमवर्क भी कर लेता और वो कर लेता। अब दूसरा जो टाइम वेस्टिंग हमारी होती है वो डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। इसको इंग्लिश के अंदर पढ़ाई करना था, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना था, इंग्लिश की किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि हमारा सामान कहाँ रखा है हमको मालूम ही नहीं। आईएसओ सर्टिफिकेशन के अंदर वो ऑडिटर्स आते हैं और बोलते हैं, टाइम देते हैं कि ये वाली फाइल लेके आओ, और 2 मिनट के अंदर अगर आपने लाके दी तो ही आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, आपको अपने थिंग्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, आपके टास्क ऑर्गेनाइज करना चाहिए, आपको आपके रिलेशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब मेरे पास टाइम नहीं, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे को समय देना है, इसलिए मैं बस बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। बहुत ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, आमिर खान बनने की कोशिश नहीं करें, इस व्यक्ति जैसा नहीं कि मरने के लिए सुसाइड करना है, गोल बंदूक भी रखी हुई है सिर पे, फांसी में का फंदा भी लगा रखा है और जहर की बोतल भी हाथ में ले रखी है। इतने ज्यादा परफेक्ट मत बनिए, है ना। पोस्टपोन मत करिए, आप पोस्टपोन करेंगे आप तो आप मतलब ये अंडर अचीवर लोग करते हैं, बोलते हैं कि आप मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन अपन उस दिन से काम शुरू करेंगे, ये मत करो। या गणेश जी का दिन है बुधवार अपन तब शुरू करेंगे, ये मत करिए। आप काम शुरू करना है करिए, सब दिन भगवान के हैं। अब मैं टाइम क्वाड्रेंट के ऊपर अभी बतलाना चाहता हूँ, परंतु थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको इसके ऊपर एक किताब बतला देता हूँ, ये पढ़िएगा आप। ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनर्स है और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव मैंस आती हैं, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा क्वाड्रेंट्स, ये आप देखिएगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी थोड़ा समय देना है। इसका बस ये शॉर्ट एसेंस ये है जो इसके अंदर लिखा है, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली। ये भगवान बाबा हमको बोलते हैं। बस ये आपको कहीं भी कुछ करना है तो आप इस फंडे को फॉलो करिए। आप तो बस आप वही क्वाड्रेंट्स में जो बात बतलाई है वो यही बात बतलाई हुई है। वीक विल पावर है, आपको टीवी के सामने आप बैठ गए तो आप उठने का नाम नहीं लेते, उसी का वीडियो बना था, परंतु वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं मोस्ट कॉमन टाइम वेस्टर्स हैं हमारे, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, टीवी है,
अब वीडियो गेम्स हैं, लगे रहते हैं हम उन्हीं के ऊपर और फिर बस अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। जिंदगी में वैल्यूज होनी चाहिए एक सक्सेसफुल मैन के लिए। और अब्दुल कलाम की स्टोरी थी एक, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। अपने आप को फिट रखिए, अगर आप फिट रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे तो आप सब काम अपने कर पाएंगे। तो इसलिए अपने लिए रोज 1 घंटे अपने शरीर के लिए दीजिए। 23 घंटे शरीर से काम लीजिए और 1 घंटे अपने शरीर के लिए निकालिए। अच्छी कंपनी के अंदर रहिए, अपने अच्छे दोस्त रखिए। कंपनी अच्छी नहीं रहेगी तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। बाबा हमारे बोलते थे, टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। अच्छी संगत में रहिए और कभी जो आपने टारगेट करा है उसको नेवर गिव अप, कभी छोड़िए मत। मेरी बात खत्म हुई। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं ओपन हूँ, आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना है। मेरा ये प्रेजेंटेशन मैं बंद कर दूं, मैं इसको किस तरीके से बंद होगा? Dear sir. teachers, you must please proceed for the question answers. Sir, I request you, can you Yeah. please share something, how you prepared yourself for marathon? उसका कुछ experiences थोड़ा share कर सकते हैं? हाँ, आपका देखिए जो मैं- जॉगिंग एंड एवरीथिंग का लाइफस्टाइल वो हम लोग के लिए बहुत useful होगा। मेरी एज अभी 58 है और मैंने रनिंग शुरू करी थी 51 की एज में। तब तक मैं रनिंग नहीं करता था। आप लोग सब मेरे से छोटे होंगे यहाँ पे जितने लोग होंगे, तो ये एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि आप रनिंग नहीं कर सकते। तो मैंने 51 की एज में रनिंग शुरू करी और पहले 3 किलोमीटर रनिंग करता था, बहुत जॉगिंग करता था। धीरे धीरे जॉगिंग करते करते 3 किलोमीटर से एक दिन मैंने गुड़िया की स्कूटी ले जाके नापा तो देखा कि वो 3 किलोमीटर है। तो संडे को 3 राउंड लगा लिए, 9 किलोमीटर हो गया। फिर किसी ने बोला मैराथन क्यों नहीं दौड़ते हो? तो उस वक्त इंदौर में मैराथन के बारे में कोई ज़्यादा, इंदौर में मैराथन वगैरह होती नहीं थी और मालूम नहीं था। फिर मैंने मैराथन के बारे में पढ़ा कि क्या होती है मैराथन। मैंने अमेरिका से एक किताब बुलाई और पढ़ा कि मैराथन होती है 42 किलोमीटर की। तो मैंने कहा अरे ठीक है। तो फिर मैंने पहले हाफ मैराथन करी, हाफ मैराथन के बाद फुल मैराथन करी। फिर मैंने किताब पढ़ी डेयर टू रन, अमित सेठ की है। उनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सोच रहा था शेयर करूंगा परंतु टाइम लिमिट है, कभी बाद में देखेंगे। तो उसमें कॉमरेड मैराथन का आया था जो कि वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एंड ओल्डेस्ट अल्ट्रा मैराथन है। उसमें जिस साल नेक्स्ट ईयर जो 2019 में हुई थी वो अपहिल थी, मतलब डरबन से शुरू होकर पीटरमिट्सबर्ग जहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से फेंका था वहां पर खत्म होने वाली थी। उसकी हाइट अगर मैं आपको बतलाऊं, शुरू में 44 किलोमीटर चढ़ना रहता। आपके भोपाल में बेतवा अपार्टमेंट की घाटी आपने देखी है ना, तो भोपाल की बेतवा अपार्टमेंट की घाटी का 50 गुना चढ़ाई चढ़ना है। 50 गुना से भी नहीं, 60 गुना चढ़ाई चढ़ना है शुरू के 44 किलोमीटर में। तो मैंने अपनी जिंदगी का गोल सेट करा, और भी मेरे दूसरे गोल्स हैं, परंतु एक गोल ये सेट करा कि मेरे को कॉमरेड मैराथन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसकी मैंने तैयारी शुरू करी और जो मैंने पहले 42 किलोमीटर पहले अगस्त 2014 में फुल मैराथन करी थी 6 घंटे 6 मिनट के अंदर हैदराबाद में, मैंने 2019 के अंदर फुल मैराथन 4 घंटे 19 मिनट 4 घंटे 16 मिनट में करी। मेरा 2 घंटे, मेरी एज भी बढ़ी और मेरा टाइम भी इम्प्रूव हुआ। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम नहीं कर सकते। फौजिया सिंह, आपने नाम सुना होगा, 107 साल की एज में है वो। उन्होंने 85 एज की एज में, मेरे रोल मॉडल हैं, 85 की एज में उन्होंने रनिंग शुरू करी। 93 की एज में उन्होंने अपनी एज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 104 साल की एज में बोलते हैं कि मैं अब रनिंग से संन्यास ले रहा हूं और बॉम्बे में तब भी 3 किलोमीटर दौड़े और अभी वो 107 साल के। तो ये जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं और नहीं तो नेगेटिव सोचते रहिए कि नहीं कर सकते। मेरे को कई लोगों ने बोला अरे भाई घुटने खराब हो जाएंगे, दौड़ने से घुटने खराब हो जाते हैं। आज तक तो नहीं हुए मेरे घुटने खराब इतनी रनिंग करने के बाद। तो ये मेरी स्टोरी है। थैंक यू और सर। Sir, we have one question. जी, Is it wrong to say no to our seniors? नहीं, आप उसको, आप सीनियर्स के लिए मना करने के लिए तरीका, बस तरीका रहता है। आपको उनको, सीनियर को हमेशा हाँ सुनने की आदत रहती है। तो आप उनको तरीके से बोलें कि जी सर आप बोल तो सही रहे हैं, परंतु मैं जरा मेरा एक काम कर लूं, और फिर पहले आप उनकी तारीफ कर दीजिए। जी सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, आप तो यू आर 100% राइट, परंतु मैं थोड़ा सा एक काम करके फिर मैं आपका काम करूँ।
फिर आप उनको तरीके से, आपको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग के अफसर के बड़े बड़े अफसर्स रहते हैं, उनको ना सुनने की आदत नहीं रहती है, तो इसलिए जी, तो आप उनको तरीके से मना करिए, मतलब ना करिए परंतु तरीके से। जी Yes, sir. You had given us very good tips. जी, You know, that was not only tips that we should actually adopt these things in our life. थैंक यू मैडम। And I was just about to ask you that which is the age to set your goals. But at the end, when you said that your goal for marathon, you set at the age of 51. So बिल्कुल, the question doesn't arise now. देखिए एज इज ओनली नंबर, है ना, मैं Age ये is no बोलते bar. हूँ एज नो नंबर। मैंने मेरी पेंटिंग करना शुरू करा 45 की एज के अंदर, है ना, आज मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, है ना, तो वो दिक्कत नहीं। तो कभी भी, अब मेरा रिटायरमेंट के बाद गोल है, ये हमारे सोपान वगैरह अच्छा गाते हैं, ठीक है, मैं गा नहीं पाता हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, परंतु मैंने सोच के रखा है कि मैं कुछ ना कुछ संगीत के क्षेत्र में करूंगा, मैं कोई सा एक इंस्ट्रूमेंट जरूर बजाऊंगा। तो जब मैं रिटायर हो जाऊंगा 62 की एज में, तब मैं अगला गोल सेट करूंगा कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा। तो कोई, अब फौजा सिंह ने 85 की एज में गोल सेट करा कि मैराथन दौड़ूंगा। उनकी स्टोरी आपको मालूम है कि नहीं? अगर क्वेश्चन नहीं हो तो फिर मैं आपकी उनकी स्टोरी सुना दूं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी। Yes, sir. Sure. फौजा सिंह 85 की एज में लुधियाना में एक गांव में रहते थे। उनका एक बच्चा था जवान, अब 85 की एज वाले का बच्चा भी 60 के ऊपर का ही होगा। तो एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी, उन्होंने कहा चलो अपन खेत में देख के आते हैं कि कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। वो आंधी आई, आंधी के अंदर एक टीन का पतरा उड़ के आया और फौजा सिंह के बच्चे की गर्दन काट दी और ऑन द स्पॉट उनका लड़का मर गया। फौजा सिंह डिप्रेशन में आ गए। फौजा सिंह जब डिप्रेशन में आ गए तो उनको बोला डॉक्टर्स ने कि इनकी जगह चेंज करी जाए, और उनकी जगह चेंज करके उनको शिफ्ट करा लंदन, बड़े लड़के के पास। लंदन में वो देखते थे कि हर कोई रनिंग कर रहा है, तो इन्होंने भी रनिंग करना शुरू कर दी। तो फिर उनको भी किसी ने बोला कि मैराथन क्यों नहीं दौड़ते, तो उन्होंने गोल सेट करा कि मैं मैराथन दौड़ूंगा। तो एट द एज ऑफ 89, 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने पहली बार 42 किलोमीटर दौड़े। 93 की एज में उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एज। तो आप देखिए उन्होंने उस एज में अपना गोल सेट करा। तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है उसके लिए। And how do we encourage since we are all teachers here, mostly Yeah. we are teachers here, Yeah. how do we encourage our students to set a goal? And मैडम मेरा ये मानना is है, it, आप पूछ लीजिए, पूरा बोल दीजिए आप। नहीं, is it right to is it right to ask them to set a goal, or it should come from them by itself, by themselves they should set it? उनको आप गोल के बारे में जो मैंने अभी बातें बतलाई हैं, ये आप बतलाइए और उनको गोल सेट करने दीजिए कि इस तरीके से सेट करना चाहिए। और अब आप बेटा तय करो कि आपको किस में बनना है। आप 3 इडियट पिक्चर हमेशा ध्यान में रखिए, आप उसके ऊपर हावी मत होइए, ठीक है। और पहले आपने क्या बोला था? मैं उसमें कुछ बोलने वाला था, मैं विषयांतर हो गया। Sorry to interrupt, sir. Only 6 minutes are left, so हम please जल्दी से Das ma'am, please continue your question before the second ends. No, that's it, because हाँ, मैं ये बोलने वाला था, याद आ गया मेरे को कि बच्चे जो रहते हैं ना घर के अंदर, बच्चे देखो 2 लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, मदर फादर से और टीचर से, है ना। तो या तो स्कूल में टीचर देखते हैं या मदर फादर। तो आप उनके लिए रोल मॉडल बनिए। अगर आप उनसे, कल क्वेश्चन आप ही ने शायद पूछा था सर से, मैं अटेंड कर रहा था, सर ने आंसर दिया किताब पढ़ने के ऊपर। अगर हम रीडिंग करेंगे घर के अंदर तो बच्चा भी रीडिंग करेगा। Yes, they will follow our action. मतलब मेरी बच्ची मेरे को देख के पढ़ना शुरू करा, मेरे को देख के उसने एक्सरसाइज करना शुरू करा, तो वो हम रोल मॉडल बनते हैं उनके लिए। Yes, sir. Children follow our actions. बिल्कुल बिल्कुल। So, sir, last 5 minutes are left. एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। जी। How we can see our own growth? ये हमारी एक मैम ने पूछा है, and she wants to know कि हम हमारी ही ग्रोथ कैसे खुद देख सकते हैं या जान सकते हैं। देखिए, अगर आप, जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपने आपकी उससे संबंधित जो भी आपका टॉपिक है, उससे संबंधित अगर आप रीडिंग करना शुरू करेंगे, या उससे संबंधित, मैं बोलता हूँ, आप कुछ लोग बोलते हैं रीडिंग नहीं कर पाते, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए। यूट्यूब पे फालतू के, यूट्यूब पे आप फालतू की चीजें देखने की अपेक्षा आप कुछ, मेरे को
पेंटिंग से संबंधित कुछ देखना रहता है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। मेरे को पेंटिंग से, एक्सरसाइज से संबंधित कुछ चीज देखना रहती है तो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। आज ही मेरी वाइफ को गूगल प्ले के ऊपर कुछ, उसको क्लासरूम में क्लास लेना है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा गूगल प्ले का नहीं आ रहा समझ में, यूट्यूब पे जाओ, मिल जाएगा, तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो आपको, आप जब रेगुलर सीखते रहेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। वो कॉन्फिडेंस का लेवल आपको बतलाएगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ने लगे, आपको लगने लगा कि नहीं मेरे को आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने शुरू में लेक्चर देना शुरू करा था तो मेरे को क्वेश्चन आंसर सेशन से डर लगता था कि यार मालूम नहीं क्या पूछ लेंगे, परंतु मेरी रीडिंग इतनी है, मेरे को मालूम है कि मैं कोशिश करके उत्तर दे ही दूंगा। तो इसीलिए कल मैंने आपसे बोला था कि मेरे से आप जरूर क्वेश्चन आंसर दीजिए, और मैंने अपना प्रेजेंटेशन भी फास्ट फॉरवर्ड करके इसीलिए खत्म करा कि मेरे को क्वेश्चन आंसर। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप में आने लगा, मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है। Okay, sir. So let's first wind up, and if in case time बचता है तो we'll love to listen to you. बिल्कुल। So अगर समय हो तो मैं आपको वैल्यूज के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी अब्दुल कलाम जी की वो सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे रोल मॉडल है, वो 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा अगर हो जाएगा तो। वो बहुत शॉर्ट में। एक पहले आपको एक प्रेजेंट है जो हमारी तरफ से जाता है, मैं पहले वो करवा देती हूँ, then we'll continue your. As the session comes to an end, before winding up, I really want to thank you, sir, from the bottom of my heart. We all promise that we will inculcate your teachings and guidance in our lives. I feel honored presenting you an e-certificate as the token of respect from our management's behalf. Lavanya ma'am, please do the needful. Thank you madam, thank you. अब्दुल कलाम जी की स्टोरी सुना देता हूँ मैं। अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति बने, मैं वैल्यूज की अपनी जिंदगी में क्या महत्व है ये मैं आपको बतलाता हूँ, ये आपने सुनी नहीं होगी इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो जब वो राष्ट्रपति भवन में गए तो वहाँ जो मिक्सर था, जो इडली बनाता तो मजा नहीं आता था उनको, तो उन्होंने कहा यार मद्रास जब जाएंगे, चेन्नई जाएंगे तो अपन एक नया मिक्सर खरीद के लेके आएंगे। तो एक बार चेन्नई गए, तो चेन्नई में जब वो राष्ट्रपति के रूप में गए वहाँ पे, तो जाके एक दुकान से उन्होंने मिक्सर खरीदा इडली बनाने का, और मिक्सर लेके आ गए। जब वो लेके आ गए तो उनके साथी ने उनको बोला, उनके खानसामा ने, कि सर ये मिक्सर खोल ले क्या? तो कहते नहीं अभी रुक जाओ। 2 दिन बाद फिर आया, कहते अभी खोल ले सर? कहते अभी रुक जाओ। ऐसा करते करते 1 महीना हो गया, वो खोल ही नहीं थे। उन्होंने खानसामा ने कहा फिर सर आप लाए क्यों, जब खोलना ही नहीं था? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आप कल बतलाता हूँ। तो उन्होंने अपने OSD को बुलाया, वो बोला यार कि अपन वो जो मिक्सर खरीद के लेके आए थे ना चेन्नई से, वो चेक अभी तक इनकैश नहीं हुआ जो मैंने चेक दिया था, तो चेक इनकैश करवाओ। तो उस दुकानदार से संपर्क किया गया, तो दुकानदार ने तो चेक जो है फ्रेम करवा के अपनी दुकान पे लगा रखा था कि अब्दुल कलाम जी ने चेक दिया है, तो उसने फ्रेम करवा के रखा था। तो उन्होंने बोला OSD ने, भैया कि तू उसकी कलर फोटो कॉपी करा के लगा ले, पहले चेक इनकैश करा, जब तक चेक इनकैश नहीं कराएगा तब तक वो मिक्सर चालू नहीं होगा। तो इस लेवल का जिंदगी के अंदर वैल्यू होना चाहिए सक्सेसफुल लोगों के बीच के अंदर। तो ये तभी अब्दुल कलाम एक महान हस्ती है। ट्रू, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। जी चलिए, तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोपान को धन्यवाद। सोपान मेरा छोटा भाई है। आप सबके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir, for listening to my words. Thank you so much for acknowledging my words. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. We are grateful. so much. थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करना चाहूंगी मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कभी भी बात करना चाहें, आप सोपान से नंबर ले लीजिए, बात करिए। सर मैं बस ये सोच ही रही थी आपसे ये परमिशन लूं। बिल्कुल, एनी टाइम। I'll share his number to everyone. I will share his number. Yes, please do, Sopan sir. Thank you so much, sir. Dr. Upadhyay from London, thank you very much. Vijay. Thank you, sir. Thank you, sir.